Okay, we have started the transaction topic in the previous lectures. Okay, what is transaction? As now we know what is a transaction. Transaction can be defined as a group of tasks. Okay, a single task is a minimum processing unit which cannot be divided further. Okay, for example, the example of simple transaction they are given here. Suppose a bank employee bank employee transfer the rupees 500 from A's account to B's account. This is very simple and small transaction involve the several low level tasks. Okay, first of all, what will be happen? He account will be open. Okay, by the employee account open होगा. Then the balance will be read. ठीक है कि कितना balance है. Then transfer जो है वो transfer 500 जो है that will be debited from our account, means account from account A. एंड देन न्यू डेबिटेड के बाद जो न्यू बैलेंस रहेगा ओके वो अपडेट हो जाएगा एंड अकाउंट विल बी क्लोज ओके सेम will be happen in the case of account B. Okay, account open होगा, old balance जो है वो balance will be read. Okay, then उसमें 500 credit होने के बाद credit होगा, then update होगा database and then close होगा. To read and write operations are performed. Okay, when transaction will be happen, the read and write operation will be performed on the database. So these are the ACID properties already we have covered. Okay, atomicity, consistency, isolation, durability, all are the properties of transaction. Atomicity, consistency, isolation, and durability. ACID. Okay. Then concurrency means simultaneously transaction we need. Okay. Yes, Jyoti. Actually, in the last lecture we had covered the practicals. Okay, queries that we will cover in the practical session. Okay, Jyoti, in the last lecture हम लोगों ने practicals ही किया था. ठीक है, practical session था ना yesterday's. तो हमने practical किया था, that we will cover in the next practical session में हम लोग continue करेंगे. At that time I will explain again. Okay, theory हमने नहीं किया था last lecture में, practically किया था Jyoti. Okay, चलो. Why do you need concurrence in the transaction? Okay, database is shared resources. Okay, database कैसा resource है? Shared resources. Okay, with multiple transaction will be happen on the one database. Okay, so it is used by many users and process concurrently. Okay, it is used by many users and processes concurrently. So we require the concurrence and we have to control that concurrency. Simultaneously access to the database called the concurrency. Okay, तो ये हमने cover किया. And state of transaction also we have covered. Okay, there are different states of the transaction: active state, partially committed state, failed state, and terminated state. It is also we have covered. Okay, states. This is a figure. You can remember from this figure. Okay, when the transaction will start, it is an active state. In active state, there are two operations performed on the transaction: read operation and write operation. Okay. आफ्टर द ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद पार्शियली कमिटेड होगा, मींस द मनी ट्रांसफर हो गया, डेबिट हो गया, बट अभी डेटाबेस में उसका अपडेट नहीं हुआ है. ओके, जस्ट ट्रांसफर हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, तो इट इज पार्शियली कमिटेड. आफ्टर डेटाबेस अपडेशन के बाद योर ट्रांजैक्शन विल बी कमिटेड. ओके, कमिटेड के बाद क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. इफ योर ट्रांजैक्शन इज इन एक्टिव स्टेट एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ओके, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, नेट इश्यू हो गया है, तो सर्वर डाउन है, कोई भी इश्यू हो गया, तो ट्रांजैक्शन में भी अबॉर्ट हो सकता है, तो इट इज इन फेल स्टेट में जाएगा. फेल स्टेट में से वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. सेम पार्शियली कमिटेड स्टेट में है तो कोई इश्यू हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि फेल स्टेट में जा सकता है ट्रांजैक्शन. तो दिस आर दी ट्रांजैक्शन स्टेट्स. ओके, तो ये हम लोगों ने कवर किया इन लास्ट लेक्चर. नाउ टुडे वी विल कवर द नेक्स्ट topic of this same transaction related. Okay, concurrency control. Okay, concurrency control. What is the concurrency? Concurrency मतलब क्या? Multiple transaction can be executed simultaneously. This thing you have to keep in your mind. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अगर ये याद रखोगे तो ही आप पूरा कंसेप्ट जो है, सारे प्रोटोकॉल्स है, you will be remember. Okay, so again I am reading. In the concurrency control, concurrency मतलब क्या? The multiple transactions can be executed simultaneously. Okay, multiple transactions can be executed simultaneously. मतलब क्या? concurrency. ठीक है, एक ही डेटाबेस पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंसी.
what will be happen, तो it may affect the transaction result. Okay, it may affect, अगर multiple transaction हो रहा है तो it may affect the transaction result. It is highly important to maintain the order of execution of those transaction. For example, okay, for example, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मल्टीपल यूजर्स एक ही डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डेटाबेस पे काम करे तो हो सकता है एक ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है, दूसरा ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है वही सेम डेटाबेस पे, तो पॉसिबिलिटी है कि लास्ट अपडेट जो होना चाहिए डेटाबेस में वो राइट अपडेट नहीं हो रहा है, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो सब मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर द कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, एंड टू मेंटेन द कॉन्करेंसी कंट्रोल वी हैव द प्रोटोकॉल्स, हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्लास का कोई एग्जाम्पल ले तो ओके, हम फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट आपको समझने के लिए कि कॉन्करेंसी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नोटबुक रखा है, ठीक है, दैट नोटबुक इज कॉमन फॉर ऑल दी क्लास, सपोज हम लोग ऑफलाइन फिजिकल क्लास में हम लोग है, तो मैंने एक कॉमन नोटबुक रखा है डीबीएमएस के लिए, ठीक है, तो उसमें मैं अपना भी कुछ नोट्स उसमें लिख रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स भी वही नोटबुक रिफर करें, अपना अपना जो भी उसको लिख रहे हैं वही नोटबुक में लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वन नोटबुक वन डेटाबेस है, एंड सारे यूजर्स एंड माय टीचर एंड सारे स्टूडेंट्स जो भी है वो एक ही नोटबुक को अपडेट करें, ठीक है। तो मैंने असाइनमेंट 1 के कुछ क्वेश्चंस लिखे और स्टूडेंट आके कुछ और लिख रहा है और स्टूडेंट कुछ और लिख रहा है, ठीक है, मतलब एक ही नोटबुक हम सब लोग यूज कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन सा असाइनमेंट किसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, किसने नहीं लिखा हुआ है, असाइनमेंट पॉसिबल असाइनमेंट 2 सब लोगों का कॉमन मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है। दिस इज ओनली फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए मैं दे रही हूँ, ये एक्चुअल में ये डेटाबेस रिलेटेड एग्जांपल नहीं है, जस्ट मैं आपको समझने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास एक ही रिसोर्स है, ओके, वी हैव ओनली वन रिसोर्स, एंड वो रिसोर्स को सारे यूजर्स एक साथ अगर यूज करें तो उसमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, उनका उनका ऑर्डर, वी हैव टू मेंटेन दी ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो नोटबुक है कॉमन क्लासरूम में एक रखा है मेरे टेबल पे, जिसको उसमें जो भी अपडेट करना है जो भी चेंजेस करना है कर सकता है, ठीक है, वो उसमें सब लोग असाइनमेंट लिख सकते हैं, बहुत बड़ा वाला नोटबुक मैंने रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, एवरी स्टूडेंट कैन राइट इन दिस नोटबुक, तो क्या हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखे और स्टूडेंट आके भी सेम वही लिखेगा और फिर आके सेम लिखेगा, तो वो मेंटेन नहीं होगा, तो उससे अच्छा मैं क्या करूंगी, आई विल असाइन दी वर्क, ओके, एक नोटबुक में मैं बोलूंगी ये रोल नंबर है तो इतना क्वेश्चन लिखेगा, ये असाइनमेंट का, ये रोल नंबर है तो ये लिखेगा, तो क्या होगा, हमारा जो नोटबुक है वो अच्छे से मेंटेन होगा, ओके, उसमें कोई डुप्लीकेशन वगैरह नहीं होगा या तो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा, ओके। तो सेम थिंग हमको कहाँ पे करना है, डेटाबेस रिलेटेड करना है, कि डेटाबेस तो एक ही है, सारे यूजर्स उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन उसमें हो रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सब रूल्स रेगुलेशंस उसमें डिफाइन करना है, मतलब प्रोटोकॉल्स हमको यूज करना है, तो वो बिकॉज ऑफ दैट प्रोटोकॉल क्या होगा, डेटाबेस में जो डेटा है ना डेटाबेस का, दैट विल बी मेंटेन, ओके, वो क्या हो जाएगा, मेंटेन, प्रॉपरली मेंटेन होगा, कंफ्लिक्ट नहीं होगा, ओके। तो ऐसे ये पढ़ना है हमको, कॉन्करेंसी कंट्रोल में क्या पढ़ना है कि जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर डन इन द सेम डेटाबेस, तो वी हैव टू मेंटेन दैट ट्रांजेक्शन, कोई डेटा जो है, ठीक है, कोई यूजर है वो सेम डेटाबेस में डेटा ऐड कर रहा है, मतलब कुछ तो क्रेडिट कर रहा है और कोई वो निकाल रहा है, ओके, बट उसको पता ही नहीं है सेकंड वाले को वो उसने ऐड करा है तो कुछ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्टेट मेंटेन नहीं होगा, वी विल लर्न विद द एग्जाम्पल के साथ हम लोग लर्न करते हैं तो आपको समझ में आएगा, तो जस्ट कीप इन माइंड कि कॉन्करेंसी मतलब क्या, मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है और हमको उसको कंट्रोल करना है, व्हाई, क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि जो डेटाबेस का जो स्टेट, कंसिस्टेंट स्टेट जो है दैट शुड बी मेंटेन, ओके, जस्ट उसको लिसन, ओके, जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने के लिए ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक में ही सबको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगेन वी विल रिपीट, ओके, चलो, तो दिस इज द मेन थिंग आपको याद रखना है, ओके। concurrency control is the process of managing simultaneously execution of transaction, okay, such as क्या क्या transaction queries, updates, insert, deletes and so on in a multi-processing database system without having them interference with वन अनदर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ही नोटबुक में सब स्टूडेंट्स को लिखना है, तो सब स्टूडेंट्स साथ में आके लिखेंगे तो पॉसिबल है नहीं, एट अ टाइम कोई एक ही लिखेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कुछ रूल्स रेगुलेशन,
This property of DBMS allow many transactions to access the same database at the same time without interfering with each other. जो transaction perform हो रहा है, multiple transaction perform हो रहा है, ठीक है, वो perform होना चाहिए without interfering with each other. Okay. The primary goal of concurrency is to ensure the atomicity of the execution of transaction in a multi-user database environment. Okay. The primary goal of concurrency control is to ensure the atomicity. What is the meaning of atomicity? Transaction जो है वो fully complete होना चाहिए. Okay, मतलब fully successful हो जाना चाहिए. Otherwise नहीं हुआ तो वो पूरा avoid हो जाना चाहिए. ठीक है. Is to ensure the atomicity of the execution of transaction in a multi-user database environment. Concurrency controls mechanisms attempt to interleave or parallelly read and write operation of multiple transactions so that the interleaved execution yields result that are identical to the result of serial schedule execution. ठीक है, concurrency control क्या करेगा? रीड एंड राइट ऑपरेशन जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं डेटाबेस पे, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, उसको वो मेंटेन करेगा, उसके लिए प्रोटोकॉल्स रूल्स डिफाइन करेगा सो दैट कि डेटाबेस का जो स्टेट है, ठीक है, वो मेंटेन होगा, कंसिस्टेंस रहेगा. ओके ओके. द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल. प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल. ओके, क्या प्रॉब्लम्स है व्हेन वी आर डूइंग द मल्टीपल ट्रांजैक्शन, कंकरेंसी हो रहा है, कंकरेंसी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो व्हाट विल बी प्रॉब्लम्स अकर हो सकता है. अगर हमको प्रॉब्लम समझ में आएगा देन वी विल लर्न द सॉल्यूशन, देन वी विल लर्न द प्रोटोकॉल्स. मैं आपको डायरेक्टली प्रोटोकॉल्स पढ़ाऊंगी तो यू विल नॉट गेट आइडिया ये प्रोटोकॉल्स क्या है, ये रूल्स रेगुलेशन क्यों है. पहले आपको प्रॉब्लम्स यू शुड नो. ओके, आपको प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए, पहले आपको प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए. आफ्टर प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग यू विल फाइंड द आंसर. ओके, क्या प्रॉब्लम्स होगा? सी, व्हेन कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन, कॉन्करेंट मतलब क्या? मल्टीपल ट्रांजैक्शन. जब मैं कॉन्करेंट वर्ड यूज करूँ ना, आपको दिमाग में लाइट होना चाहिए मल्टीपल ट्रांजैक्शन. ओके, व्हेन कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अ अनकंट्रोल्ड मैनर. ओके, मतलब उसको हम लोग कंट्रोल नहीं करे, कोई सीक्वेंस हमने डिसाइड नहीं किया, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं किया है, तो सेवरल प्रॉब्लम्स कैन अकर. व्हिच प्रॉब्लम्स कैन अकर? LOST, लॉस्ट अपडेट्स. ओके, हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ. Lost updates, dirty read, okay, DIRTY, dirty read, and unrepeatable read. Okay, तो हम लोग one by one पढ़ते हैं problems. The first is lost update problem. Okay, these problems will be occur when multiple transaction will be happen to the same database. Okay, जब हम लोग एक ही database में multiple transaction करें तो possibility है कि lost update problem arise हो सकता है. Now what is a lost update? See, a lost update problem occur when two transactions that access the same database items have their operation in a way that makes the value of some database items incorrect. Okay, दो suppose for example दो transaction एक ही database पे काम करे without knowing to each other, ठीक है, उनको नहीं पता है कि मैं भी चेंज कराऊँ, साथ में पैरेलली और कोई ट्रांजैक्शन है और कोई यूजर है वो भी डेटाबेस में चेंज करा है. ओके, so in other words, if transaction T1 and T2 both read the record and then update it, the effects of the first update will be overwritten by the second update. Okay, read this. I am again reading. In other words, if transaction T1 and T2 दोनों अलग transaction है, T1 is a different transaction and T2 is different transaction. Okay, both read records, दोनों records database को read करे and उसको update कर रहे हैं, दोनों update करें. Okay, दोनों update करें simultaneously. The effects of the first update, मतलब जिसने दोनों में से जिसने first update किया होगा, changes किया होगा database में, वो overwritten हो जाएगा by the second update. Okay, जिसने second next update किया होगा वो क्या हो जाएगा? override हो जाएगा. ओके, तो दिस इज अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, मतलब फर्स्ट वाले ने जो चेंज किया था वो डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है, ठीक है, जो सेकंड चेंज करेगा वही फाइनली चेंज होगा, बट ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, सी विद द एग्जांपल, कंसीडर दिस सिचुएशन इन द फिगर बोला है ट्रांजैक्शन ए एंड ट्रांजैक्शन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, टाइम के हिसाब से हम लोग देखते हैं. दिस इज ट्रांजैक्शन 1, दिस इज ट्रांजैक्शन 2. ट्रांजैक्शन ए it is done by one user, transaction B is done by the second user. Okay, and this is time. Okay, time just उन्होंने ऐसे काउंट किया है. Okay, T2 फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पे कोई भी जो ट्रांजैक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है डेटाबेस पे. नाउ एट टाइम T1 पे क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन A, ओके, जो
एक यूजर है जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो डेटाबेस को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, T2 टाइम, ओके, थोड़े टाइम के बाद, सेकंड थोड़ा आफ्टर दी सम टाइम के बाद, ट्रांजैक्शन बी जो है वो सेम डेटाबेस को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ओनली रीड कर रहा है, अपडेट नहीं किया, क्या किया, रीड किया। आफ्टर सम टाइम ट्रांजैक्शन ए एट T3 टाइम पे ट्रांजैक्शन ए क्या कर रहा है, डेटाबेस को अपडेट कर रहा है। डेटाबेस को क्या कर रहा है, अपडेट। एक्स मतलब क्या, डेटाबेस, ओके, डेटाबेस को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ओके। ट्रांजैक्शन ए ने डेटाबेस को अपडेट किया, ओके, ट्रांजैक्शन ए मतलब एक यूजर ने डेटाबेस को अपडेट किया। उसके बाद आफ्टर सम टाइम ट्रांजैक्शन बी जो है, ट्रांजैक्शन बी जो है वो क्या कर रहा है, अगेन डेटाबेस को अपडेट कर रहा है। बट ये जो डेटाबेस को अपडेट करेगा ना, वो कौन से वैल्यू पे अपडेट करेगा, दिस वैल्यू पे अपडेट करेगा, ऑन दिस वैल्यू, ओके। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, डेटाबेस में कौन सा अपडेट होगा, दिस वन अपडेट होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन ए ने जो अपडेट किया था दैट विल बी लॉस्ट। तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ओके। यू कैन रीड एट टाइम T1 ट्रांजैक्शन ए रीड द वैल्यू ऑफ x, ट्रांजैक्शन एट टाइम T2 ट्रांजैक्शन बी रीड द वैल्यू ऑफ x, मतलब डेटाबेस सेम, x मतलब क्या, डेटाबेस है। एट टाइम T3 ट्रांजैक्शन ए राइट्स वैल्यू ऑफ x ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू सीन एट टाइम T1, टाइम T1 पे उसने जो डेटाबेस का वैल्यू फॉर एग्जांपल 500 है, 500 उसने रीड किया एंड 500 में कुछ को माइनस करा है, अपडेट करा है, ठीक है। तभी डेटाबेस में कितना हो जाएगा, 400, ओके। बट ये टाइम T2 पे जो डेटाबेस ट्रांजैक्शन बी है उसने भी कितना रीड किया था, 500, ओके। इसने 500 रीड किया, इसने भी 500 रीड किया। आफ्टर ट्रांजैक्शन ए क्या कर रहा है, उसमें अपडेट करा है, मतलब फॉर एग्जांपल उसे 500 में से 100 या तो 200 ट्रांसफर कर दिया, तो अभी डेटाबेस में बैलेंस कितना होगा, 500 में से चलो उसने 100 माइनस कर दिया, डेबिट कर दिया, तो कितना होगा, 400। बट जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसको तो क्या लग रहा है कि अकाउंट में कितना है, 500, तो वो जो अपडेट करेगा वो किस पे करेगा, 500 पे ही करेगा। बट एक्चुअल में डेटाबेस में कितना था, 400 आफ्टर द अपडेशन बाय द ट्रांजैक्शन ए। तो ट्रांजैक्शन ए ने जो अपडेट किया था वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में ये जो ट्रांजैक्शन, जो सेकंड ट्रांजैक्शन जो है बाय द सेकंड यूजर, वो क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे ही अपडेट करेगा। बट ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब डेटाबेस में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये सेव हो जाना चाहिए, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। तो दिस इज अ लॉस्ट update problems, okay। So at the time T4 transaction B writes the value of x on the basis of the value seen at time T2, okay। ये सेकंड ट्रांजैक्शन क्या करेगा, अपडेट करेगा। बट कौन से वैल्यू पे अपडेट करेगा, जो उसने T2 टाइम पे जो रीड किया था वो, और T2 टाइम पे जो रीड किया था सपोज वो 500 है, कितना है वो, 500 है, ठीक है। बट उसको नहीं पता है कि ट्रांजैक्शन ए ने वो 500 को चेंज कर दिया है, ओके। सो update of transaction A is lost at time T4 because transaction B overrides it without locking its current value. Such type of problem is referred as update lost problem, as update made by one transaction is lost here. If कभी होगा अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, ओके, एक ही डेटाबेस पे काम करे और दोनों को नहीं पता कि ये यूजर भी ट्रांजैक्शन करा और मैं भी ट्रांजैक्शन करा, और उसको कोई रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स अप्लाई नहीं किया है। सो to avoid this problem we have to use protocols, we have to use मतलब क्या, जो ये डिजाइन कर रहा है डेटाबेस, जो डेटाबेस पे जो काम कर रहे हैं प्रोग्रामर्स है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जो भी डेटाबेस बना रहा है दे हैव टू अप्लाई दी सम प्रोटोकॉल्स, उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स टू रिमूव दिस सिचुएशन, ओके। हम लोग पहले प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि प्रॉब्लम्स अकर हो सकता है। क्लियर, this is clear, this problem is clear students, yes or no, yes or no। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ऐसे नहीं है कि मैम ने एक बार बोला तो समझ में आ रहा, ओके ओके। यस एंड अदर स्टूडेंट प्लीज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, ओके। ऐसे नहीं रखना है कि मैं पूछूंगा या तो पूछूंगी तो बाकी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर हियर फॉर स्टडी के लिए हम लोग है, ठीक है। तो और कुछ नहीं सोचना है। यू हैव एनी डाउट तो यू कैन जस्ट टेल मी मैम प्लीज रिपीट, तो मैं रिपीट कर दूंगी। यस ज्योति, ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग ज्योति, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम लोग अगेन करते हैं। क्या करना है हमको, कॉन्करेंसी जो हो रहा है उसको हमको मेंटेन करना है। व्हाई मेंटेन करना है, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी मतलब क्या, मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है। इफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन इज डन, ओके, तो वी हैव टू मेंटेन दैट ट्रांजैक्शन। व्हाई, बिकॉज मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो एक ही डेटाबेस पे हो रहा है,
तो एक ही डेटाबेस पे अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहा है बाय द मल्टीपल यूजर्स, तो पॉसिबिलिटी है कि एक यूजर ने जो ट्रांजेक्शन किया है वो दूसरे यूजर को नहीं पता है, तो जो उसमें अपडेट हो रहा है, ठीक है, वो अपडेट प्रॉपर नहीं हो रहा है। ओके, वो अपडेट प्रॉपर नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि देखा, ओके, डेटाबेस, एक डेटाबेस है, वी हैव द वन डेटाबेस, उसका नेम एक्स है, ठीक है, तो दो ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही डेटाबेस पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल T0 टाइम है, ठीक है, हम लोग जस्ट टाइम ऐसे ही कंसीडर करें, तो T0 पे कुछ नहीं हो रहा है, T1 पे एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन ए इज डन, क्या कर रहा है वो डेटाबेस को रीड कर रहा है। ओके, दैट ट्रांजेक्शन इज रीडिंग द डेटाबेस, जस्ट उसने रीड किया। ओके, तो उसको फॉर एग्जांपल डेटाबेस में वैल्यू है 500, कितना वैल्यू है 500, तो ट्रांजेक्शन ए क्या रीड करेगा कि डेटाबेस में कितना वैल्यू है 500। ओके, आफ्टर सम टाइम सेकंड ट्रांजेक्शन आ रहा है, ठीक है, वो भी रीड कर रहा है कि सेम डेटाबेस में कितना वैल्यू है 500। ओके, आफ्टर सम टाइम T3, एट टाइम 3 थी, थोड़े टाइम के बाद जो ट्रांजेक्शन ए है उसको क्या कर रहा है कि चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, डेटाबेस को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 500 था, तो उसने 100 रुपीज किसी को ट्रांसफर कर दिए, किसी को ट्रांसफर कर दिया। ओके, आफ्टर T4, सॉरी T3 के बाद आफ्टर सम टाइम एट टाइम T4 ट्रांजेक्शन बी है, वो क्या करेगा, डेटाबेस को अपडेट करेगा, वो भी कुछ चेंज करा है, बट उसको नहीं पता कि ट्रांजेक्शन ए कोई एक और एक यूजर है, उसने ऑलरेडी सेम डेटाबेस को चेंज किया हुआ है, सेम वैल्यू चेंज किया हुआ है। वो तो क्या करेगा, अपना जो अपडेशन है वो किस पे परफॉर्म करेगा, उसने जो वैल्यू रीड किया था टाइम T2 पे, उसने 500 रीड किया था, तो 500 पे ही रीड करेगा, एक्चुअली था कितना 400। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो अपडेशन हो रहा है बाय द ट्रांजैक्शन बी, वो किस पे अपडेट करेगा, ओल्ड वैल्यू पे ही अपडेट करेगा, न्यू वैल्यू पे अपडेट नहीं करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन ए ने जो अपडेट किया था वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा, लास्ट में क्या सेव होगा, दिस वन। ओके, तो दिस इज अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम है, लॉस्ट अपडेट के मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई ट्रांजेक्शन ने अपडेट किया है दैट इज नॉट रीड बाय सेकंड ट्रांजेक्शन, उसको नहीं पता है, तो वो डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा, तो दिस इज अ लॉस्ट अपडेट ट्रांजेक्शन। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, वन नोटबुक रखा है मैंने अपने टेबल पे, सबको वही यूज करना है, ठीक है, तो कोई भी यूजर आके कभी भी उसको यूज कराए, किसी ने कुछ आके उसमें असाइनमेंट 1 लिख दिया, किसी ने असाइनमेंट 2, किसी ने असाइनमेंट 3, अगेन किसी ने सेम असाइनमेंट लिख दिया, ठीक है, तो हम नहीं पता कि किसने आके क्या लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो सेम हम लोग सेम तो नहीं बोल सकते, जस्ट मैं आपको एग्जांपल ऐसे ही दिमाग में रखने के लिए दिया है, समझने के लिए। तो दिस इज अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ओके, ओके, द सेकंड प्रॉब्लम इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। मतलब इसमें तो क्या हुआ, क्या डेटाबेस में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन जो है, मतलब जो लास्ट में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है, प्रीवियस वाला ट्रांजैक्शन को ओवरराइड कर रहा है। मतलब ट्रांजैक्शन ए ने जो अपडेट किया था डेटाबेस में वो सेव नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन बी ने जो किया था वो वाला, मतलब लास्ट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ओवरराइट हो जाएगा टू द प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे। ओके, तो दिस इज अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ओके, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन अपडेट करे, बट फाइनली डेटाबेस में कौन सा रिफ्लेक्ट होगा, कि जो लास्ट ट्रांजैक्शन ने परफॉर्म किया था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है डेटाबेस में, वो चेंजेस हो रहा है। फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में किया था कुछ चेंजेस, वो अपडेट नहीं हो रहा है, वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है डेटाबेस में, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है डेटाबेस में, तो दिस इज अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम इज dirty read problem. These problems arise due to multiple transaction on the same database. Okay, the second problem is dirty read problem. Okay, what is dirty read problem? A dirty read problem occurs when one transaction updates the database items, okay, and then the transaction fail for some reason. Okay, a dirty read problem occurs when one transaction update a database item, क्या करा है, database को update करा है, and then transaction fail for some reason, की वजह से transaction क्या हो गया, fail हो गया। The updated database item is accessed by another transaction before it is changed back to the original value. अब इसमें उल्टा हो रहा है, see, a dirty read problem occurs when one एक transaction database को कुछ update कर रहा है, okay, database को उसने update कर दिया, okay, and the transaction fail for some reason की वजह से क्या हो गया, fail हो गया। The updated database item जो है, जो उसने चेंजेस किया था वो किसने रीड कर लिया, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में, मतलब साथ में ही वो आया होगा आफ्टर फ्यू सेकंड्स के बाद, तो उसने क्या किया, डेटाबेस में जो चेंज हुआ था ना उसने वो रीड कर लिया। ओके, बट उसके पहले उसने रीड किया, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजैक्शन ए ने जो अपडेट किया था वो
फेल हो गया, मतलब डेटाबेस अभी चेंज अगेन उसको ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, उसका ओरिजिनल वैल्यू रीड नहीं कर रहा है, जो उसने अपडेट किया था वो वाला वैल्यू रीड कर रहा है, तो दिस इज अ डर्टी रीड प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम। In another way, words, a transaction T1 update the record, okay, which is read by transaction T2. Then T1 abort, and T2 now has value which have never performed the part of stable database. This is a in easy word. एक मिनट में इसको आपको बताती हूँ, ठीक है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज अ डर्टी रीड प्रॉब्लम। ए ट्रांजैक्शन T1 ने रिकॉर्ड्स अपडेट किया, ओके okay? जैसे उसने अपडेट किया वैसे ट्रांजैक्शन T2 एंटर हो रहा है और उसने वो अपडेट रीड कर लिया, ओके। ट्रांजैक्शन T1 ने डेटाबेस में कुछ अपडेट किया, जैसे वो अपडेट कर रहा है ना वैसे सेकंड ट्रांजैक्शन एंटर हो रहा है और उसने वो क्या किया, डेटा जो अपडेट वाला डेटा उसने क्या किया, वो रीड किया। देन थोड़े टाइम के बाद ट्रांजैक्शन T1 क्या हो रहा है, अबॉर्ट, फेल हो रहा है, ओके क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, वो अबॉर्ट हो गया, फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ, अबॉर्ट हो गया। एंड T2 नाउ हैज वैल्यू, T2 के पास कौन सा वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू, बट T1 तो अबॉर्ट हो गया, T1 अबॉर्ट हो गया तो वो डेटाबेस में जो वैल्यू था वो अगेन कौन सा हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। बट T2 के पास कौन सा वैल्यू है, T1 ने अपडेट किया हुआ वैल्यू है, बट डेटाबेस में कौन सा हो गया,